نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ شہریار آفریدی کے بیان کے بعد بلی نہیں بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے۔ ایک بیان میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سیاستدان کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی۔ شہریار آفریدی کہہ چکے ہیں کہ براہ راست ملٹری قیادت سے بات کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہے تو پھر سول سپریمیسی سے نکل جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ ایک ہاتھ گریبان پر اور دوسرا ہاتھ ان کا پاؤں پر ہوتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ پر پی ٹی آئی میں شدید اختلافات۔ پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز اور شیر افضل مروت آمنے سامنے آ گئے۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب سے ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر 1-2 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کنفیوژن اسپیکر نے پیدا کی ہے۔ شیر افضل مروت نے شبلی فراز سے بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں شبلی فراز غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے میرا نام دیا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کبھی حامد رضا خان کا نام دیا ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھانہ بنی گالہ فائرنگ مقدمے میں بری ہو گئے۔ اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ نے علی امین گنڈاپور سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ بیرون ملک ہونے کے باعث مدعی کا آن لائن بیان لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 کے تجربے سے شریف فیملی کی معیشت ٹھیک ہوگی۔ کرپٹ ٹولے کو فکر ہے کہ ملک میں پیسہ نہیں تو کہاں سے کھائیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری کہتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور اپنی زبان اور کردار کی وجہ سے پختونوں کے نام پر دھبا ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں عورت کی ترقی اور خوشحالی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ مریم نواز سے متعلق علی امین گنڈاپور پہلے بھی زبان درازی کر چکا ہے۔ اگر ایسی زبان آئندہ استعمال کی تو حلق سے وہ زبان کھینچ لیں گے۔ پختون بڑے غیرت مند اور عورت کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور جیسا شخص پختونوں کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ پی ٹی آئی ایک بار پھر انتشار اور فساد کی سیاست کر رہی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ لگتا ہے پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل اداروں کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے، یہ مس کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دینے والے 1 بوتل شہد پر سڑکوں پر دوڑتے نظر آتے تھے، مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں کرنے، آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی سے مذاکرات کرنے ہیں۔ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے۔ اگر سیاسی جماعت اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے، ان کا وزیر اعلیٰ، ان کا صوبائی صدر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اتنی پی ٹی آئی کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اتنی ایک دوسرے سے پتہ نہیں، ان کے بیانات نہیں ملتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک لیڈر سے بیان دلواتے ہیں اور دوسرے لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ اس بیانات کی تردید شروع کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ جس طرح مودی اور ٹرمپ نے مس کال نہیں دی تھی، لہٰذا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈائلاگس کرنے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ لیوی اسپورٹس کے اہلکاروں کو تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاج۔ کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی، گھر چلانا، بچوں کا پیٹ پالنا اور اسکولوں کی فیسیں ادا کرنا اور ممکن نہیں رہا۔ ملازمین پھٹ پڑے۔ ملازمین نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے حنیف بازئی سے۔ حنیف، احتجاج کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے؟
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई महीनों से तनख्वाह न मिलने की वजह से फेडरल लेवीज के जो एहलकार है वो इस वक्त प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी कैंप लगाए बैठे हुए हैं। इस वक्त में एहतिजाजी कैंप में मौजूद मजीद जानते हैं यहाँ से लेवीज एहलकार है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, कब से जो है तनख्वाह नहीं मिली और क्या वजूहत बता रहे हैं? जी सर, वजूहत ये बयान करें कि ये अंग्रेज दौर से लेकर आज तक ये फेडरल लेवीज चल रहा था। ये 2020 में इसको वो वफाकी गवर्नमेंट ने तनख्वाह नहीं दी है। 2020 से बाद 23 तक उसने तनख्वाहें दी, अभी रिलीफ तनख्वाह हाजिर सर्विस को मिल रहे। 2021-22 से जो जवान बैठे कई जिलों से 16 जिले हैं, हर जिले से 20-20 बंदे, 15-15, 30-30, 80-90 बंदे फारिग बैठे हैं। 3 साल से ये लोगों का तनख्वाह नहीं है। हम अपने महकमों से बेउम्मीद होकर यहाँ पे डेरा लगाए, अभी बैठे हैं प्रेस कलम के सामने। जो लेवीज भाइयों के 3 साल से तनख्वाह नहीं है वो सारे मौजूद हैं। उसके घर दर पदर बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। अब तमाम जो अफसरान है हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट है कि अगले जो गुजरे हुए हुकूमत है उससे हम बेउम्मीद हो करके अभी आप लोगों के आसरे पे हम लोग बैठे हैं। ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बंद तनख्वाहें दिया जाए और हमें पाकिस्तान बलूचिस्तान के रूल पे जो सूबाई मुलाजम है उसके रूल पे हमें तनख्वाहें और पेंशन मिलाया जाए। जो हाजिर सर्विस भाई हैं उसको सूबाई लेवीज पे हजम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे अपने इस्लाइन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल से जो इनको तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से इनके घर में अभी फाका कशी जो है वो शुरू हो गई है। जी, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से बड़े नुकसानात। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 12 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 21 अफराद जाम बहक और 25 जख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में 7 मर्द, 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। बारिशों के बायस 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 191 घरों को जज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। बारिशों के बायस 4 पुल और 14 सड़कें भी मुतासिर हुई। मज़ीद सूरत हाल कोयटा के ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नुकसानात के बारे में अपडेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से बड़े नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। 12 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 21 अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात हैं, जबकि 25 के करीब जख्मी हो चुके हैं। जाम बहक होने वालों में 7 मर्द हैं, 7 खवातीन हैं, 6 बच्चे भी शामिल हैं। बारिशों के बायस 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 191 घरों को जज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। और ये जो बारिशें हैं इनके बायस 4 पुल और 14 सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त मनासिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। हालिया बारिशों की वजह से तबाही बर्पा हुई है। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 26 तक पहुंच गई है। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को खुशाब और कामोकी में आसमानी बिजली गिरने से 2 शहरी दम तोड़ गए। हफ्ते को राजनपुर की तहसील रुझान में शरीफ नामी शहरी आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गया। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में जाँ बहक शहरियों की मजमूई तादाद 26 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से 7 घर, 1 स्कूल जज़वी तौर पर मुतासिर हुए। मुख्तलिफ इलाकों में पुरानी इमारतें गिरने से 3 शहरी जाम बहक और 9 जख्मी हुए। बारिशों से 7,863 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। वेलकम बैक नाज़रीन। किसानों के लिए 3,900 रुपये में गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम का रेट 3,000 तक गिर गया है और दूसरी जानिब 3,900 रुपये रेट ना मिलने पर किसानों का मुआशी इस्तेहसाल शुरू हो चुका है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत गंदम ना खरीद कर हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। ऐसा ही रवैया रहा तो अगली बार गंदम की फसल नहीं उगाएंगे। महकमा खुराक की जानिब से बारदाने की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है।
गंदुम किस रेट पर किसको बेचें? सिंध और पंजाब के किसान परेशान। पंजाब में हुकूमत की जानिब से गंदुम खरीदारी न करने पर किसान सरापा एहतजाज, जबकि सिंध में गंदुम की खरीदारी में 50% कमी किसानों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। किसानों ने हुकूमत से सरकारी रेट पर गंदुम खरीदारी शुरू करने का मुतालिबा कर दिया। किसानों के लिए 3,900 रुपए सरकारी रेट पर गंदुम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। फी मन कीमत 3,000 तक गिर गई। किसान जाएं तो कहां जाएं? गंदुम खुले आसमान तले खराब होने लगी। बरसते बादलों और मजीद बारिशों की पेशगोई से गंदुम की रिकॉर्ड पैदावार किसानों के लिए जहमत बन गई है। गुजरांवाला में गंदुम खरीदारी न करने पर किसान सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद ने पंजाब असेंबली के बाहर धरने की धमकी दे दी। सारे किसान जो है ना वो 29 तारीख को निकलेंगे और पंजाब असेंबली के पहुंचेंगे। हुकूमत किसी तरह भी काम नहीं करती तो हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। सफदराबाद में बारिश से गंदुम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। हुकूमत की जानिब से गंदुम की खरीदारी न होने की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार। हमारी गंदुम में बारिश की वजह से खराब हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। बारिश की वजह से हमारी कटाई भी नहीं हो रही। सरकार हमारी गंदुमें भी नहीं ले रही। हम लोग महंगी खादें और दवाइयाँ डाल डाल के तो हमारे कर्जे सिर पर चढ़ गए। ना कोई सरकार हमसे दाने लेती है, ना कोई और गंदुम हमसे लेता है। खुशाब में भी हजारों एकड़ पर गंदुम की फसल तैयार, कटाई जारी है, लेकिन पास्को की जानिब से गंदुम की खरीदारी के लिए बारदाना जारी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने गंदुम खरीदारी पर किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस लिया है। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदुम की फौरी खरीदारी का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदुम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया है। वज़ीर आज़म ने गंदुम की खरीदारी में पास्को को शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से टेलीफोनिक रब्ता करके पंजाब में गंदुम की पैदावार और ख़रीदारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। हुकूमत की सोलर पैनल की खरीदारी पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में सदाकत नहीं है। पावर डिवीजन ने हुकूमत को फिक्स टैक्स लगाने की कोई समरी नहीं भिजवाई। नेट मीटरिंग का निज़ाम शमसी तवानाई में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहा है। साहिब सरबत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। घरेलू और सनती सारिफीन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी देनी पड़ रही है। सब्सिडी की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं।